Hello students. Today we will be discussing about FCNRB account. This topic is useful only for scale 2, 3, GVO, CVO and if you are attending for other higher skills. This is not very much useful for PO exams. For PO exams you can just only know what is the FCNRB account is. What is F in FCNR or what is N in FCNR, that this type of questions may be asked, but no detailed question will be asked in PO examination related to FCNR accounts. Okay, then for PO you can leave it this session just only by knowing. Let me tell you, FCNRB is foreign currency non-resident, NR. तो जब भी n का नहीं, it won't ask for n or r. What is n or r? Because it is a one single word, non-resident. B is the bank, and that after that it is account. Okay. In which currency? Any permissible currency it can be opened, and the exchange risk. The best of this thing is the exchange risk is not associated with the member banks or RBI. It is completely up to the account holder. ठीक. In which currency? It is a foreign currency account and can be opened in any permissible foreign currency. Okay. For PO aspirants, you may leave this session after this, knowing about FCNR. Okay. This is further useful for scale 2, 3 in other banks who are moving R4, scale 4, RGVO or CVO exams. Okay. Next, move to our session. This is all about myself and my qualifications. We won't be wasting time. A number of times I have told regarding this. Therefore, we will be moving towards our session. The first is, what is FCNR account? The PDF of this, first I should tell you that PDF of this session will be shared in Telegram group. Telegram group is in the name of FINANCIAL, financial. F is the capital, AWARENESS. Double S होता है, that is one S is more because the name was not available. Either you can type @exam zone 247. It will show myself directly to you. You message me, I will add you in the group, where you can get an RBI circular compilations or MCQs, current vacancies, everything is updated in the group. Okay. Let us move towards our session. What is FCNR account? The foreign currency non-resident scheme was introduced with effect from May 15, 1993. Okay. This scheme was 1993 to replace the prevailing FCNR-A. Earlier it was FCNR-A. ठीक है, foreign currency non-resident. A is the account. Later it was modified because in this account exchange risk was with RBI. Exchange risk क्या होता है? अगर आप आज $1 लिया, डिपॉजिट किया और आपको 82 रुपीज मिल रहे हैं, ओके, फर्दर आपके पास $1 है एंड आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू हो गई 105. ठीक है. देन द RBI is not going to give you like 105 or exchange risk is associated. He is compensating you in the exchange risk. It is all up to you. You deposited $1, you will get $1 by yourself. It doesn't matter whether the dollar is going up or dollar is going down. Correct. FCNRA scheme was withdrawn in August 1994 because in this scheme exchange risk was with RBI. ठीक है. As of now, नो अकाउंट इज अंडर FCNRA. जो अकाउंट FCNRA में ओपन थे वो अकाउंट कंटिन्यू हुए अपने मेच्योरिटी तक FCNRA में. लेटर नो अकाउंट इज अंडर द स्कीम FCNRA वाज ओपन एंड एट प्रेजेंट नो अकाउंट इज अंडर FCNRA. The FCNRB account scheme was applicable to the deposits accepted in 4 currencies: pound sterling, US dollar and Japanese yen. ठीक है. After a number of revisions in the scheme is available in any permitted currency.
आप एनी परमिटेड करेंसी में FCNR अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि FCNR जो अकाउंट ओपन होगा, द अकाउंट FCNR विल बी ओपनड ओनली इन फॉरेन करेंसी, तभी तो परमिटेड करेंसी बोल रहा है ये, ठीक है। द अकाउंट विल बी ओपन इन फॉरेन करेंसी। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिपॉजिट इन FCNRB? द डिपॉजिट्स अंडर दिस स्कीम रिफर द टर्म डिपॉजिट्स ओनली। टर्म डिपॉजिट्स मीन्स एक प्रॉपर टर्म के लिए, और 1 to 5 years में आप ओपन कर सकते हो, या 1 से 2 year, या 2 से 3 year, या 3 से 4 year, या 4 से 5 year, नॉट मोर देन 5 years you can open. Further, you cannot open in a recurring deposit. Recurring deposit you cannot, that is आप $200 per month डिपॉजिट करना है ऐसा करके 2 years तक, तो you cannot open this account, ठीक है। FCNRB अकाउंट में सिंगल टाइम डिपॉजिट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक आपका वो रहता है। हु कैन ओपन दिस अकाउंट? NRI, नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पाक एंड बांग्लादेश आर एक्सक्लूडेड। वाई पाक एंड बांग्लादेश ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, अगर खोलते हैं तो उनको बैंक लेती है परमिशन। एक्चुअली मैं बताऊं कैसे होता है ये। When a person comes to open FCNRB account in your bank, if he is a national of, he is allowed NRI, but he is residing in Pakistan, suppose. NRIs, most people think that person residing in US. It is also possible that an Indian is residing in Pakistan or in Bangladesh. Then you will send the request to your international banking department or treasury. Somewhere treasury is looking for this function. uh, they will take permission from RBI, then only you can open this account. Payment of interest in FCNR deposits. FCNR deposits में payment is calculated at 360 days in a year. Okay, one thing you should know, बैंकिंग के केस में ईयर 360 डेज ही लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस सब के लिए। तो फर्दर, या तो आइदर यू कैन पे द इंटरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ 360 डेज, और यू टेक 180 डेज प्लस 180 डेज प्लस रिमेनिंग, सपोज 4 5 जो भी डेज आप इसमें आ रहे हैं, 365 डेज या 364 डेज, जैसा एज यू विश। तो एक्चुअल रिमेनिंग नंबर ऑफ जो डेज बच रहे हैं फर्स्ट पीरियड के लिए आप 6 मंथली पेमेंट कर दो, बाद में रिमेनिंग डेज के लिए भी पेमेंट करो। जो 365 डेज होते हैं ना, तो 180 डेज के लिए पेमेंट कर दिए, तो फिर अभी बचा 185 डेज, तो 185 डेज का बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। देयर आर टू स्कीम्स इन विच यू कैन पे द इंटरेस्ट इन FCNR account. However, the depositor will have option to receive the interest on maturity without with compounding effect. ये बोल सकता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ जो ओपन किए हो डिपॉजिट, जो डिपॉजिट ओपन किया है उसको कंपाउंडिंग, ईयर कंपाउंडिंग साथ लास्ट में मैच्योरिटी पे इसको पेमेंट करो। अब एडवांसेस लोन दे सकते हो कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हो। सिंपली जैसे आप बैंक में डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन देते हो, सिंपली विथ प्रॉपर मार्जिन आप लोन दे सकते हो। लेकिन क्या है इसमें, पहले लिमिट था। भाई फॉरेन करेंसी यहाँ पे आ रहा है, इंडियन रुपी जा रहा है बाहर, या इंडियन रुपी ले लेगा ले, ठीक है। ओके, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट्स अंडर दिस? अर्लियर इट वाज द सीलिंग, बट अभी कोई सीलिंग नहीं है। रिवाइव रूपी लोन्स टू बी अलाउड डिपॉजिटर और थर्ड पार्टी। मतलब अगर मेरा FCNR है, ए का, ए इज हैविंग FCNR डिपॉजिट एंड ए इज सेइंग टू द बैंक दैट गिव लोन टू बी using collateral of my deposit, you can give. Okay, this is the third party. Actually, why it is third party? Because one party is the bank, second party is this, then third party is this. This is the third. Okay, rupee loans. For foreign currency loans, suppose the person is already having the in US dollar and he needs US dollar loan, then also foreign currency you can pay
आइदर टू थर्ड पार्टी आर डिपॉजिटर विद यूजुअल मार्जिन्स। ठीक है, जितना मार्जिन आप लेते हो नॉर्मली एफडी में उतना लेकर के आप कर सकते हो। द इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन एफसीएनआरबी। अब ऐसा नहीं है कि किसी किसी एक बैंक को लग रहा है कि हमारे पास फॉरेक्स का ज्यादा होना चाहिए, हम अपना मार्केट में ट्रेड करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, पैसे कमाएंगे ट्रेड से, तो ऐसा नहीं। एफसीएनआर जो अकाउंट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए कोई कमीशन भी नहीं देना, ये भी गाइडलाइन है आरबीआई की। सेकंड, इंटरेस्ट रेट का एक कैप फिक्स कर दिया गया है, आप उससे ज्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अगर 1 ईयर से 3 ईयर्स तक का है तो ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट फॉर रिस्पेक्टिव करेंसी प्लस 250। देखो, इससे पहले लाइबोर चलता था, लाइबोर और माइबोर ये हटा दिया गया है, अब कोई भी रेफरेंस रेट आप ले सकते हो। तो अभी क्या है, ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। ठीक है, इसको ORR भी बोल सकते हो, अल्टरनेटिव हटा दो तो उस पे प्लस 250 पॉइंट्स। ठीक, अगर 3 ईयर से ज्यादा है प्लस 350, 100 बेसिस पॉइंट इसमें और दो 100 बेसिस पॉइंट। अब बेसिस पॉइंट जानो, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो समझ में आया? चल नेक्स्ट, टैक्स क्या है? इंटरेस्ट इनकम इज एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स हाउएवर ऑन रीलोकेशन। ओके, जब तक वो एनआरआई है और उसका एफडी इधर है, फिक्स डिपॉजिट एफसीएनआर अकाउंट, तो इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल एफसीएनआर। करेक्ट। इफ ही रीलोकेट्स टू इंडिया टैक्स इज पेएबल। अगर वो इंडिया में आ जाता है तब उसे टैक्स देना पड़ेगा, जैसा उसका स्टेटस रहे उस टाइम। वे ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड्स, ये इसका मतलब ये है कि एफसीएनआर में पैसा, वो मनी, फॉरेन करेंसी किस तरह आएगी। या तो फंड्स डिपॉजिटेड इन द अकाउंट कैन बी बाय वे ऑफ फ्रेश रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज। ओके, ओवरसीज से फ्रेश रेमिटेंस आए, या अदर एनआरई या एफसीएनआरबी अकाउंट। एक एफसीएनआरबी उसने खोला था 5 ईयर्स का, वो मैच्योर हो गया, उसको फिर से एफडी करना है एफसीएनआर, तो वहां से भी वो पैसा आ सकता है। ठीक है, और एनआरओ अकाउंट में पैसा है तो उससे भी वो एफसीएनआरबी अकाउंट कर सकता है। मतलब एनआरई या एनआरओ अकाउंट, इस पे अलग से सेशन हम बनाएंगे अभी, इस पे देखिए। इससे भी एफसीएनआर में ट्रांसफर कर सकता है, या ऐसे एफसीएनआर जो मेच्योर हो गए हैं उनसे भी फंड ट्रांसफर करके एफसीएनआर नया अकाउंट खोल सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉल्स अगर होता है तो नो इंटरेस्ट इज पेएबल इफ द डिपॉजिट इज विड्रॉन बिफोर 1 ईयर। 1 ईयर के पहले अगर वो एफसीएनआर को अकाउंट क्लोज करना चाहता है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। इफ द डिपॉजिट इज विथड्रॉन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर या 1 से, ठीक है, 1 ईयर प्लस में, ठीक है, द इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर द पीरियड हैज रिमेन्ड विद द बैंक। अगर, चलो बताता हूँ, 1 से 3 ईयर के लिए अलग रेट है ना, 1 ईयर के पहले अगर इस, और 3 से 5 ईयर के लिए अलग रेट है। अब अगर इसने 1 ईयर के पहले क्लोज किया तो इसको जीरो इंटरेस्ट रेट मिले, कुछ नहीं मिलेगा। अगर 1 ईयर के बाद किया तो 1 से 3 ईयर वाले टर्म में आ रहा है, ठीक है, उस पे मिल जाएगा। या अलग बैंक के पास अगर कोई ऐसी स्कीम है कि इस 1 से 3 वर्ष के बीच में, ऐसा नहीं है कि वो ईयर के मल्टीपल में, हो सकता है 1.5 ईयर के लिए अलग रेट हो बैंक का, तो बैंक को वो रेट देना पड़ेगा जितने दिन के लिए डिपॉजिट उसके पास है। ऐसे 3 ईयर्स के बाद है तो उसका जो स्कीम है बैंक का उसके हिसाब से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिपॉजिट इज मेड फॉर 3 ईयर्स and premature after 2 years, the rate applicable for the 2 to 3 years tenure at the time of making। देखो यही तो बताया अभी हमने। तो विदाउट लिविंग एनी पेनाल्टी, कोई भी पेनाल्टी नहीं लगानी है, बस एक 1 ईयर के अराउंड आपको बिफोर 1 ईयर कोई रेट नहीं मिलेगा। ठीक, दिस इज द सेशन दैट इज फिनिश्ड नाउ, होप यू एंजॉयड इट। अभी एफसीएनआर पे आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, और इतना दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ओके।
If you like this session, you subscribe this channel. You also subscribe the link given in the channel and Telegram so that you can get updated. Well, I am also starting an RBI circular discussions and will be uploaded every Saturday Sunday, because Saturday Sunday I am free. By that time I am completely busy. I don't have seconds of time to work on this. Hope you enjoyed a lot. Thank you for this watching this session. Have a nice